Hello guys. After CAT, now if you're going to take SNAP exam, then this video lecture is useful for you. As you know, in SNAP, there are 60 questions and the time limit is only 60 minutes. Only 60 minutes. This make it difficult. बहुत सारे आपके सीनियर्स या कुछ तो लोगों का कहना होगा कि स्नैप का पेपर इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है, लेकिन 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्स। अब ये पेपर डिफिकल्ट रहता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या क्या चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। आप अपने माइंड को कैसे शिफ्ट करें कैट से स्नैप के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टुडे इज 1 दिसंबर एंड यस्टरडे यू हैव टेकन योर कैट। मुझे पता है कि एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, तो अगर स्नैप दे रहे हैं तो इसको अच्छे ढंग से जानिए, सोचिए समझिए। Your strategy is entirely different what you adopted for cat. So first, as I said, there are three sections. In section one, it's a general English. The total number of questions are 15 and total marks 15. In general English, reading comprehensions, verbal reasoning, and verbal ability. And section two is your QA, DI, and DS. All these three areas are together. And the total number of questions are 20. Total number of questions 20. So in section 1, 15 question, here 20 question. And the third section is analytical and logical reasoning. Here the total number of questions are 25. So in total, the total number of questions are 60, and these 60 questions are to be answered in a 60 minutes. So now you can understand one question in a 1 minute. One point is very clear here. Look here, if you want to take admission in SIBM or SCMHRD, so above your percentile must be 98 plus. Any plus 98 percentile is required. And for this purpose, you can say up plus 40 स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 40 प्लस नहीं आते हैं, सो एज पर द लास्ट ईयर्स performance of the students and on the basis of their scores, we can say that 40 प्लस स्कोर अगर आपका नहीं आता है तो फिर 98 परसेंटाइल से ऊपर आने में आपको प्रॉब्लम होगी, और फिर आपका ड्रीम कॉलेज जो SIBM पुणे या SC बचाड़ी अगर जो होगा, जो कि सबका होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे ही आपको ये पता लगता है कि 40 प्लस स्कोर कम से कम चाहिए इन कॉलेजेस के लिए और तो 98 परसेंटाइल, तो फिर ये पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। सो in a 60 minute you have to answer all these 60 questions. This way is definitely uh, snap is tougher than cat, right? अगर आपको ये क्वेश्चन टाइम लिमिट से हटा के दे दी जाए तो डेफिनेटली, अगर टाइम लिमिट नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ऐसा इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है कि जिन्हें ना किया जा सके, लेकिन टाइम लिमिट है और हमें अपना स्कोर भी 40 प्लस करना है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि टेस्ट आसान नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या होता है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में, इसके बारे में आपको बताते हैं। इन सेक्शन 1, it's a let us take analytical and logical reasoning. So here the mathematical reasoning, as you know, there are 25 questions from this analytical and logical reasoning sections. So it is a very important section. Here questions from the mathematical reasoning, blood relations, analogy, direction test, coding, decoding, clocks and calendars, series, visual reasoning, verbal reasoning, grid-based puzzles, arrangement-based puzzles, miscellaneous, right? So logical reasoning means here it's some questions based on critical reasoning, or some critical reasoning based questions from there are some syllogism based questions, एक या दो आर्गुमेंट बेसिस क्वेश्चंस, ठीक, कोर्स ऑफ एक्शन बेसिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक या दो। बट पॉइंट इज, अगर एक या दो क्वेश्चन भी आता है और अगर वो आपका गलत हो गया तो प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, क्योंकि
बहुत जल्दी जल्दी आपको वर्क करना हो, बहुत सारी जगह पर आपको मेंटल कैलकुलेशन करना चाहिए, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा, तुरंत आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए, और तभी आप 40+ आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, इसके कंसेप्ट को ठीक से पढ़ लीजिए। इसमें क्लॉक एंड कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो देखिए अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से रिवाइज कर लिया, जो कि आप पहले कैट के वक्त इन सब चीजों को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन टेस्ट, ये सब बातें कैट प्रिपरेशन में आपने नहीं कर रखी होंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर जरूर देख लीजिए। डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, एक क्लॉक से हो गया, एक कैलेंडर से हो गया, या किसी एक से। अक्सर 2-3 सालों से देखा जा रहा है, ऐसा जरूर होता है। और ये कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉगी, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, इनको जो आप पहले नहीं कर रहे थे, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ विजुअल रीजनिंग बेस्ड, वर्बल रीजनिंग, ग्रिड बेस्ड पजल्स, इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। जो अभी आप जो LR और DI के जो क्वेश्चन कैट के लिए कर रहे थे, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो इसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्लॉक एंड कैलेंडर आप जो आपने नहीं पढ़ा था, ये ब्लड रिलेशन है, इन सब चीजों को रिवाइज कर लीजिए। डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉगी, जैसे सिलोजिज्म यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में आता है। सिलोजिज्म है, या कोर्स ऑफ एक्शन है, या आपके एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट बेस्ड, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ भी हो सकते हैं। सो हियर दे आर, हियर यू हैव 25 क्वेश्चन, इनको इस तरीके से प्रिपेयर करिए। इंग्लिश के सेक्शन में, in English, there are only 15 questions, and in 15 क्वेश्चन, जैसे आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच देख लेना चाहिए, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट। ये जो आरसी पैसेज 1 और 2 लिखा हुआ है मैंने, लेकिन हो सकता है कि आरसी का पैसेज आपको एक भी ना मिले। ठीक है। लेकिन आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि 15 मिनट्स में अगर आपने पैसेज पढ़ के आंसर दिया तो टाइम फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए आरसी पैसेजेस के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। लेकिन जो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आरसी वगैरह तो आप अभी थोड़े दिन पहले मतलब बहुत पढ़ रहे थे, क्योंकि यस्टरडे यू आप टेकन कैट। ठीक है। बट ये सब चीजें आप मिस करते, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेज, फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी जो चीजें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर के 6-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो दिस आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शंस, वॉइस चेंजेस मीन्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक, ईडियम्स, ऐसे भी क्वेश्चन इस 15 क्वेश्चन में देखे जा सकते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन वोकैब से हो गया, या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से एक एक, दो दो क्वेश्चन, एक एक दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। तो चांसेस है कि आपके आरसी के पैसेज ये दो नहीं होंगे, या हो जाते हैं तो अलग बात है। तो ठीक है, आप इन सब चीजों पे फोकस करिए, और थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिए, सेंटेंस करेक्शंस वगैरह, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, इन सब चीजों को रिवाइज कर लीजिए, कुछ इडियम्स उनको देख लीजिए। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन। फिर आती है मैथ्स की बात। यहाँ मैथ्स में आपका क्यूए का, क्यूए, डीआई, डीएस, सब कुछ एक साथ ही 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें नो डाउट अरिथमेटिक ज्यादा होती है, और थोड़ा सा मॉडर्न अलजेब्रा है, जिसमें आपको जैसे पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी है, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अरिथमेटिक क्योंकि आपने अभी पढ़ी हुई थी, तो अलजेब्रा भी आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि अगर टाइम लिमिट ना हो तो उनको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम का प्रेशर आपके ऊपर रहता है, और आपको मालूम है कि 40+ अगर स्कोर जाना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन छोटे होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो आप प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करिए कि मेंटली कैलकुलेशन हो जाए आपके। ठीक है ना। कोई भी जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अपने अच्छी तरीके से आना, ये नहीं कि कंसेप्ट को रिकॉल करने में ही आपको टाइम लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, भागते रहो, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्नैप के लिए। आपने टेस्ट स्टार्ट किया और दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, जब तक आपकी सांस फूलने लगेगी, तब तक आप मत रुकें, और 1 घंटा हो जाना चाहिए। बिल्कुल आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
आप प्रिपरेशन कैसे करें? डेफिनेटली आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है पहले से। अब आप ऐसा करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, कैट में तो ऐसा नहीं कहा था मैंने, है ना, लास्ट वीक में टाइम पे कहा था कि 8, 7 या 8 टेस्ट मॉक काफी है। जब 1 नवंबर से मैंने ये अपना वीडियो डाला था, ठीक है ना। लेकिन स्नैप में ऐसा नहीं है भाई। अगर आप 10 या 12 जितने भी मॉक दे डालोगे, तो ये सोचिए ना, एक मॉक में सिर्फ 1 आवर ही तो होता है। 12 भी मॉक दे दिए तो आपके 12 घंटे तो हो गए। क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है, और इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड ज्यादा आएगी। तो मैक्सिमम मॉक्स लीजिए। हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट मैं भी आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और भी दूसरी कोचिंग्स के जो फ्री मॉक्स होंगे स्नैप्स के, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए मॉक दे करके, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं पहले से पढ़ रखे हैं, इनको आप रिवाइज करना चाहते हो तो जरूर देख लीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो इट डज मैटर, राइट। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो क्लॉक कैलेंडर्स वगैरह है, या इसमें ब्लड रिलेशन है, या क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह, ये सब तो आप करके पहले कैट में गए थे, उनको देख लीजिए। तो जब मॉक टेस्ट देंगे उसके थ्रू हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रामर का जो रिवाइजन रिवीजन कर लीजिए, ग्रामर का रिवीजन कर लीजिए। वोकैब बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, ईडीएम, वर्बल ईडियम्स वगैरह, उनको देख लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब चीजें अगर आपने नहीं कर रखी हैं, तो इनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए और फिर टेस्ट दीजिए। डीआई और डीएस वगैरह होता है, कोई एक सेट छोटा सा डीआई का आ सकता है। डीएस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अर्थमेटिक अक्सर पूरे पेपर में ज्यादा से ज्यादा होती है, और कुछ मॉडर्न अलजेब्रा के चैप्टर्स हो सकते हैं। तो स्नैप का टेस्ट जो है आपका, ये पूरा स्पीड पे बेस करता है, कि 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? और इसके लिए आप जितना हो सके मॉक दीजिए। ठीक है? 1 आवर में एक मॉक देते हैं, उसको दीजिए। उससे आप प्रैक्टिस और सब कुछ गेन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्नैप, राइट। थैंक यू।